एकदम मजेदार मसालेदार खबर पर, और वो खबर है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती से दुश्मनी। क्या हो गया ऐसा, देखें। आइए, बड़ा मजेदार केस है भाई। सबसे पहले सुनते हैं ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं। The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats, their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays, and other things. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. The strength of the यमन, हेती, लीबिया, कोंगो, इक्वाटोरियल गिना, इरिट्रिया, ईरान, सोमालिया, सूडान, इन सब पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। ठीक है। और 7 कंट्री जिन पर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है वो हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सीरिया लियोन, टोंगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुला। तो कहते हैं कि ये लोग बाहर से आके बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, और ट्रंप ने बाइडन ने जो है इनको ओपन पॉलिसी के तहत इनको यहाँ शरण दी थी, इनकी वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है, हमारे यहाँ जो है दिक्कत हो रही है। बड़ी देर से समझ में आया, चलो आया तो जो है उनको तो निकाल लो। वो 2-4 वीडियो बनाने के बाद तो आपको कुछ खबर आ नहीं रही है। पर बात यहाँ खत्म नहीं, बात हो गई अब इलॉन और ट्रंप की हो गई लड़ाई। इलॉन का जो उन्होंने डॉज जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का जो उन्होंने बनाया था डिपार्टमेंट, उसका समय कार्यकाल खत्म हो गया। इलॉन इज नाउ आउट ऑफ गवर्नमेंट। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं सुनिए। Should people not take him seriously about spending now? You're saying he's also outrageous. No, he worked hard and he did a good job. And I'll be honest, I think he misses the place. I think he got out there and all of a sudden he wasn't in this beautiful Oval Office and he's got nice offices too. But there's something about this one. I was telling the Chancellor, this is where it is. People come in here, even from Germany. They come in and they walk into the Oval Office and it's just a special place. It's, World War I, it started and it ended here, and World War II and so many other things. Everything big comes right from this beautiful space. It's now much more beautiful than it was 6 months ago. A lot of good things happening in this room. And I'll tell you, he's not the first. People leave my administration and they love us. And then at some point they miss it so badly, and some of them embrace it, and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome, I guess they call it. But we have it with us. They leave, and they wake up in the morning, and the glamour's gone. The whole world is different, and they become hostile. I don't know what it is. Someday you'll write a book about it, and you'll let us know. तो कहते हैं, इनसे पूछा गया कि एलन मस्क जो है फला चीज़ें कह रहे थे, उनको सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं, उसने बहुत मेहनत करी है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे लोग मिस करते हैं, यहाँ की ग्लैमर को मिस करते हैं, इतने बड़े ऑफिस को मिस करते हैं। शायद इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। हालांकि इलन के पास अपने खुद के ऑफिस हैं, बहुत बड़े ऑफिस हैं, लेकिन ओवल ऑफिस की बात कुछ अलग है। ये जलवा, ये ग्लैमर, अगले दिन जब उठते हैं सो के तो मालूम चलता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इलॉन मस्क को ये परेशानी है, निकाल दिया। पर इलॉन मस्क तो कुछ और ही बता रहे हैं। मनी डॉज हैज सेव्ड द गवर्नमेंट, ट्रम्प्स बिग ब्यूटीफुल बिल। ओ, रौंद दिया, पीछे से ट्रम्प का बिल आ रहा है भाई, और ये किसी और ने नहीं, एग्जैक्टली कह रहे हैं इलॉन मस्क, कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो यानी एक बात तो पक्की है, इलॉन मस्क तो ये मान रहे हैं कि हाँ, ये जो नया बिल आया, ये बिल बहुत गड़बड़ है। इस बिल ने कमर तोड़ दी है। इस बिल ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की ऐसी हालत कर दी कि पूछिए मत। जो हमने बचाया था वो सारा लूट जाएगा, ऐसा कहना है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क कहीं सही है या डोनाल्ड ट्रंप सही है, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा काम है, हम इसको एनालाइज जरूर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी फाइट है जो इस समय स्प्लिट वाइड ओपन है। सबके सामने को देखना होगा कि आखिर दोनों के बीच में हुआ क्या, लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात का है। दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों जो है सरकार में आए। इलॉन जो है एक अच्छे दोस्त ट्रंप के माने गए। ट्रंप के कहने पर ही उन्होंने अरबों खरबों रुपया लगा दिया और उन्होंने एक्स जैसे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को खरीदा, जिसको बाद में उन्होंने एक्स कर दिया। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और अचानक से संबंधों में इतनी खटास आई कैसे, मैं आपको बताऊं। जब सत्ता मिल जाती, देखिए क्या होता है, राइट विंग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या, वो आप भारत में भी देखते हैं। यहाँ क्या होता है, कोई यदि आपका समर्थक होता है और यदि वो समर्थक से थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तब क्या होता है, उसको गाली देना शुरू कर दिया जाता तुरंत ही, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और ऐसा ही अमेरिका में भी हुआ। ट्रंप के जो समर्थक थे उन्होंने इलॉन को जो है कभी नशेड़ी तो कभी कुछ घोषित करना शुरू कर दिया, वीडियो लाकर डालने शुरू कर दिए कि ये तो ऐसा है वैसा है, देखो देखो ये नशा करता है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियोस, आप इसको देख कर खुद समझेंगे। इस तरह से जो है पे क्लोज अटेंशन टू हिज आइज, ये देखो ये नशेड़ी है, ये नशा करता है, इस प्रकार की चीज़ें शुरू कर दी गई बदनाम करने के लिए। और ये भारत में भी होता है, जैसे ही कोई थोड़ा सा भी इधर उधर हो तुरंत उसको बदनाम करना शुरू कर दो। इनफैक्ट ये भारत से ही शुरू हुआ है। और अगर मैं टू बी प्रिसाइज, अगर मैं इस बात को कहूँ कि और इनके तमाम सारे और नशेड़ियों के साथ वीडियो लगा दिए गए कि देखो वो भी ऐसा दिखता है, वो भी ऐसा है, वो भी वैसा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें की गई, ये चीज़ें चल रही थी और ये सबके सामने थी। भारत में भी ऐसे ही होता है। शायद भारत से ही सीख लिया इन्होंने, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि भारत से ही सीख लिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन इसका रिपरकेशन क्या होता है, इससे ये होता है कि आप आदमी को अपना विरोधी बना लेते हो। और ये करते हैं छोटे भैया, कीमत बड़े लोग चुकाते हैं। अफसोस इस बात का कि बड़े लोग इन छोटे भैयों को रोकते नहीं हैं। भारत में ऐसा कंटिन्यूस होता है बहुत लंबे समय से। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो देखकर बुरा लगता है, हमको कभी कभी बोलना भी पड़ता है
कि तुम्हारे बाप के बाप जो है उनसे पूछो पैर छूने क्यों आते हैं। फिर उस भाषा में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये चीज़ें अब जो है अमेरिका में भी हो रही हैं। अब स्पेंडिंग वाला जो खेल है उसको समझिए। स्पेंडिंग वाला बिल जो आया है, बिग ब्यूटीफुल बिल बोल रहे हैं ट्रंप इसको, वहीं एलन मस्क इसको किल द बिल कह रहे हैं। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अब है क्या कि साल में जितना कमाती है सरकार, उससे $600 बिलियन अतिरिक्त खर्च करेगी सरकार। सरकार को खर्च करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज रिसेशन में चले जाएंगे। बात यहाँ पर भी नहीं है, खर्चे से प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा तो कितना भी कर दो, बात उससे बड़ी है। सरकार ने कर्ज लेने की जो बंदिश थी उसे हटा दी और $4 ट्रिलियन का जो है लोन और बढ़ा दिया। जो डेफिसिट था वो और बढ़ गया 4 ट्रिलियन, ठीक है। बात यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि जब डेफिसिट बढ़ा तो उन्होंने बोला हम अननेसेसरी स्पेंडिंग खत्म करेंगे। अब अननेसेसरी स्पेंडिंग में क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, बैटरी वाली व्हीकल्स, इन पर से हम सब्सिडी हटा देंगे। और टेस्ला एक ईवी है, अगर सब्सिडी हट जाएगी तो टेस्ला बहुत महंगी हो जाएगी। तो इन्होंने टेस्ला पर से जो है सब्सिडी हटा दी। अब सोचिए $250 मिलियन फूंक दिए थे एलन मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए। अगर सब्सिडी हट गई तो टेस्ला तो फेल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी टेस्ला। टेस्ला को खरीदेगा कौन? और टेस्ला इतनी महंगी हो जाएगी कि उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। टेस्ला का सारा खेल इसलिए चल रहा। तो ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप कार्ड खेला कि उन्होंने एलन को बिल्कुल साइड में कर दिया। इससे पहले विवेक रामास्वामी साइड में हो गए, जेडी वांस बचे हुए थे, अभी बचे हुए हैं। खैर, तो जो है पुरानी यादें जो है वो बता रहे हैं ट्रंप को, एलन मस्क की। आप एक समय पर सब्सिडी को लेकर कितना चिल्लाते थे कि ईवी का ही फ्यूचर है। Elon called yet? They said, no, sir. The next day, what about Elon? Did he call? He never even mentioned it to me, never complained. Until this moment, I'm just bringing it up. Who would do that? He has never asked me for a thing. And he's built this great company, and he shouldn't be penalized because he's a patriot. He's an incredible patriot. And I don't even know if he's a Republican. Mr. President. Elon called yet? कहते हैं पेट्रियट है, पेनलाइज नहीं करना चाहिए। ये इनका 12 मार्च का वीडियो था। एलन मस्क ने बाकायदा को ट्वीट करके लिखते हैं, रिमेंबर दिस रियल डोनाल्ड ट्रंप। याद है आपने ऐसा कहा था कि एलन मस्क को पेनलाइज नहीं करना चाहिए, इसलिए जो है सब्सिडी जो है हम इस पर ईवी पे देंगे। लेकिन उल्टा काम हो गया, जो मिल रही थी वो भी बंद हो गई। अब ट्रंप की देखो दोस्ती यारी तब तक चलती सर जब तक पेट पे लात नहीं पड़ती। पेट पे लात पड़ती ना फिर सब मामला गड़बड़ हो जाता है। लेफ्ट के विरोध में इनको सत्ता मिल रही है इजीली, इसलिए पगला गए सब जगह। राइट विंगर्स का ये हाल है। वो अपना इकोसिस्टम कभी बना भी नहीं सकते, ना बना पाए ना कभी बना पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास नहीं, एक दूसरे गम खाने की आदत नहीं है। किसी ने गाली दे दी तो उसको सहन करने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो जब ऐसा होता तब ये स्थिति होती। तो राइट विंग का हाल बहुत बुरा है। खैर, तो ट्रंप और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, जरा सुने। वो कह रहे हैं बिल के बारे में तो पता था एलन मस्क को। Big Tim, I would have won Pennsylvania, I won it by a lot. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all, we want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, he became a little bit different. And I can understand that. But he knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape, he said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Did he, I just want to clarify, did he raise any of these concerns with you privately before he raised them publicly? And this is a तो साहब कहते हैं कि एलन की मैंने बहुत मदद करी, लेकिन एलन ने ऐसा कर दिया। उसको तो सब पता था, इनर वर्किंग अंदर खाने में क्या चल रहा है एलन को सबसे ज्यादा पता था, किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा। पर एलन मस्क तो कुछ और लिख रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं फॉल्स, दिस बिल वाज नेवर शोन टू मी इवन वंस एंड वाज पास्ड इन द डेड ऑफ नाइट सो फास्ट दैट ऑलमोस्ट नो वन इन कांग्रेस कुड इवन रीड इट। अरे बाप रे, एलन मस्क तो कुछ और ही आरोप लगा रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था, झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, ये गलत बात है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाया गया, मुझे इस बिल के बारे में पता ही नहीं। और रात में हबड़ तबड़ में इस बिल को पास किया गया, इतना फास्ट पास किया गया कि लोग इस बिल को पढ़ भी नहीं पाए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने निकाल दिया ईवी मैंडेट इसलिए है। चलो आगे देखें, ट्रंप ने कुछ और भी कहा है। Elon was wearing thin. I asked him to leave. I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars and that nobody else wanted. That we knew for months I was going to do. And he just went crazy. Such an obvious lie. So sad. तो साहब ट्रंप ने इसके बाद में जो है ये कहा कि ये मैंडेट तो मुझे हटाना ही था। और Elon जो कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं हर कोई मजबूरी में ईवी ले, फोर्स कर दिया जाएगा ईवी सबके ऊपर, और ऐसा हम नहीं करेंगे, सारी गाड़ियाँ बिकेंगी। तो उन्होंने ये आरोप लगाया। Elon मस्क कहते हैं बोले ये तो झूठ है। चलिए फिर क्या और देखिए, नासा को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। He wanted, and rightfully, he recommended somebody from that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA, and I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges we're going to have to appoint a Democrat. NASA is very important. We have great people. General Kane is going to be picking somebody with our. We'll be checking him out, seeing. But he wanted that person, a certain person, and we said no. And I can understand why he's upset. Remember, he was here for. He won. एक और बड़ा आरोप ट्रंप ने लगा दिया, कहते हैं नासा का हेड वो किसी व्यक्ति को बनाना चाहते थे जो डेमोक्रेट था और टोटली डेमोक्रेट था। हमने उसको मना कर दिया कि नहीं, इसको नहीं बनाएंगे। इसको लेकर इलोन अपसेट हो गए और उन्होंने बोला बोले नहीं तो फिर तो हमारा साथ नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लड़ाई जिस वजह से हुई। तो नासा का अगर बना देते तो क्या फर्क पड़ने वाला था।
इलोन ने आपको जिताया, वो कह रहे कि मैंने जिताया, मैंने इलोन की मदद करी। किसने किसकी मदद करी, देखें जरा। कैन आई फाइनली से दैट ट्रम्प्स टैरिफ्स आर सुपर स्टूपिड? इलोन कहते हैं दैट ट्रम्प टैरिफ्स विल कॉज अ रिसेशन इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। देखो भाई, रिसेशन तो ऑलरेडी अमेरिका में आ रखा है, और टैरिफ की वजह से मैंने उसी, ये जो इलोन आज बोल रहे हैं, रात को कोई आता, उसने लगभग 1 महीना पहले बोल दिया था, जब ये टैरिफ का नौटंकी इन्होंने शुरू कर दी कि हम टैरिफ लगा देंगे। हमने क्या कहा था, इससे आप और बुरी तरह से रिसेशन में चले जाओगे, बुरे रिसेशन में चले जाओगे। आज इलोन मस्क भी वही बात बोल रहे हैं जो आपको मैंने यहाँ कही थी आज से कुछ महीने पहले। याद है? याद है तो लिख दिया करो, हाँ याद है। और नहीं याद है तो फिर देखा मत करो, पोगो को देखा करो। जब याद ही नहीं रहती तो फायदा क्या है? ठीक है, कैलकुलेशन सर एकदम सिंपल है। जितना आप टैरिफ बढ़ाओगे उतनी आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आप उतने रिसेशन में चले जाओगे और आप उभर नहीं पाओगे। रिसेशन से उभरने का सिर्फ एक ही तरीका होता है फ्री मार्केट खोलते जाओ, जितना आप खोल सकते हो, नहीं तो आप निपट जाओगे। चलिए, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने मदद करी इलोन की। इलोन मस्क तो खुले में चौड़े में लिख रहे हैं, विदाउट मी ट्रम्प वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, डेम्स वुड कंट्रोल द हाउस एंड रिपब्लिकन्स वुड बी 51 to 49 इन द सीनेट। ओ बाप रे, सच इनग्रेटिट्यूड। ओए होए होए होए। ट्रम्प अभी कह रहे थे कि मैंने इलोन का बहुत मदद करी है, पर इलोन मस्क तो खुले में कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो ये चुनाव नहीं जीत पाते। और मैं इलोन मस्क की इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि अगर इलोन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा होता, इसमें पैसा नहीं फूका होता, तो ये हवा नहीं बन पाती इलोन मस्क की, डोनाल्ड ट्रम्प की। और डोनाल्ड ट्रम्प किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाते, ये मैं आपको लिख कर दूं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प का नाम ही नहीं चलता, रिपब्लिकन की तरफ से कोई और ही होता। लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था, सबसे खतरनाक दुश्मन। तो जो हीरो था उसने पलट के जवाब दिया राजकुमार को, बोले कोई पुराना और गहरा दोस्त। तो कहता है हमें तुम्हारा ये जवाब बहुत पसंद आया, उसमें कोई दुराई नहीं। सबसे खतरनाक दुश्मन आपका कोई बहुत करीबी या पुराना और गहरा दोस्त हो सकता है। सबसे खतरनाक दुश्मन में आपकी पत्नी हो सकती है, अगर आपकी एक्स वाइफ है तो। अगर वो अपनी पर आ जाए तो आपकी बैंड बच जाए। सबसे खतरनाक दुश्मन आपका पुराना दोस्त हो सकता है, जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है। जो आपका सबसे करीबी होगा वही आपका सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। और जो दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो फिर भगवान ही बचाए। कुछ ऐसा ही हो गया। और इलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। टाइम टू ड्रॉप द रियल बिग बॉम्ब। रियल डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स। दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। हैव अ नाइस डे। ओहो, डोनाल्ड जे ट्रंप, उफ उफ उफ। मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर, द ट्रूथ विल कम आउट। और ये बड़ा और बड़ा आरोप, संगीन आरोप नहीं, खुलासा कि एप्स्टीन फाइल में जेफरी एप्स्टीन, वो जो बच्चों के साथ कुकर्म कर रहा था, उस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। इसलिए इनको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। बात तो सही है, आपने जेफ की फाइल्स तो डिक्लासिफाइड कर दी, तो जेफरी एप्स्टीन की फाइल अभी तक डिक्लासिफाइड क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? क्या ये सही बात है? देखिए, जब दो लोग लड़ते हैं तो क्या भयंकर लड़ते हैं। 1992 की ये पार्टी है और 1992 की पार्टी में जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। उनकी पार्टी में है ये बुंगा बुंगा पार्टी, व्हाटएवर यू कॉल इट। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप 1992 की पार्टी में दिख रहे हैं। यही वो पार्टियां हैं जिनकी वजह से जेफरी एप्स्टीन की जो जान गई है। अंडर एज गर्ल्स, अंडर एज बॉयज, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, उसमें डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, फीचर कर रहे हैं, अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा। ओह माय गॉड, क्या बात है। तो मुश्किल में पड़ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी तो कुछ वीडियोज आई हैं, आगे और वीडियोज आएंगी, कुछ फाइल्स और खुलने की संभावना है। और अगर ये फाइल्स खुलती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जेफरी एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, हत्या कर दी गई थी जेफरी एप्स्टीन की। ये कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली, सारी फाइलों को दबा दिया गया। सच्चाई है कि ये बहुत कड़वा सच है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी और सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए और बड़े बड़े मंत्रियों के लिए गले की फांस बन जाएगा, क्योंकि जिस दिन ये फाइलें खुलेंगी उस दिन कांड होगा सर, बहुत बड़ा कांड होगा पूरे विश्व के अंदर। इसलिए कोई खोल नहीं रहा। तो साहब, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो पाएगा? जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन फाइल्स में। ये कब खुलेंगी? क्योंकि उन फाइल्स में छोटे छोटे बच्चों का खून दफन है। उन फाइल्स में उन गरीब देशों के बच्चों का खून दफन है जहां आइलैंड खरीदे गए, और उस आइलैंड पर बुंगा बुंगा पार्टीज होती थी इनकी। गूगल कर लेना भाई, बुंगा बुंगा पार्टीज का। आपको पता चल जाएगा कि हाई ऑन ड्रग्स एंड स्मॉल किड्स इज व्हाट दे वांट, कि सारी चीज़ें वहाँ होती थी। वहाँ पर एक नर्स थी, उस नर्स की भी हत्या कर दी गई। वो जब तक कुछ पूरा बता पाती, थोड़ा बहुत ही बता पाई, और उतने में उसकी हत्या हो गई थी। उसने बताया कि अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन उस आइलैंड को छोड़ नहीं पाई, कभी वहाँ से बाहर नहीं आ पाई, बस वो लिख कर ही बता पाई। खैर, ट्रंप कहते हैं इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, इज टू टर्मिनेट इलॉन्स गवर्नमेंटल सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रंप भी खुल कर आ गए। आई वॉज ऑलवेज सरप्राइज दैट बाइडेन डिडंट डू इट। ट्रंप कहते हैं अब जब लड़ाई हो गई है, जेफरी एप्स्टीन वाली कहानी खुलने वाली है, तो ट्रंप ने भी कह दिया इनके सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देने चाहिए। हैं? हाँ, कह रहे हैं सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो इनके, और सब्सिडीज पूरी खत्म करो। बाइडेन ने क्यों नहीं किया था? पूरी बाप रे, ये तो गजब की लड़ाई हुई। ये टिपिकल राइट विंग लड़ाई है, जो आप कुत्ते बिल्ली की लड़ाई आप एक्स पर, सोशल मीडिया पर देखते हो। छोटे भाइयों को लड़ते देखते हो, यहाँ बड़े भी ऐसे लड़ते हैं। और यही कटु सत्य है राइट विंग का, सो कॉल्ड राइट विंग का पूरी दुनिया में। पूरा लेफ्ट विंग आज बहुत खुश है, होना भी चाहिए, ये उसकी जीत है, क्योंकि मूर्खों की जमात में ऐसा होता है तो फायदा तो होता है दूसरे को। तो गजब की लड़ाई साहब, और खुले में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को जवाब देते हैं इलोन मस्क, कहते हैं इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ माय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, SpaceX विल बिगिन डीकमीशनिंग इट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इमीडिएटली। अरे बाप रे बाप, अमेरिका को बड़ा 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 नुकसान होने वाला है। जो ड्रैगन है, स्पेसक्राफ्ट है, उसको डीकमीशन करेंगे। बोले आपने खत्म कर दिया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए।
हमारी सब्सिडीज खत्म कर दी, जब कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया तो हमारे स्पेसक्राफ्ट आप क्या करेंगे? तो उन सबको डीकमीशन करेंगे। कोई कह रहा था कि मैंने युद्ध रुकवाया, कोई कह रहा था मैंने युद्ध रुकवाया। मैं कहता हूं कि मोदी जी युद्ध रुकवा दें क्या दोनों में? चलिए, इलॉन मस्क ने बाकायदा एक पोल भी क्रिएट कर दिया और कहते हैं, इज इट टाइम टू क्रिएट न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द 80% इन द मिडिल? 81% लोगों का कहना है यस, हमने भी यस में ही वोट किया है। हाँ, जरूरी है कि अभी समय जो है अमेरिका में नया इतिहास रचा जाए, नई पार्टी का उदय हो। और ये रहा अमेरिका और ये रहे इलॉन के स्पेसक्राफ्ट्स, टीम अमेरिका। सो दे आर गोइंग आउट नाउ। अमेरिका गॉट ब्रोक, नथिंग एल्स मैटर्स। उफ, अमेरिका का नुकसान हो गया। कहते हैं, इफ द कंट्री गोज इंसॉल्वेंट, इफ ऑल द मनी इज जस्ट स्पेंट ऑन पेइंग इंटरेस्ट ऑन डेट्स, देयर इज नो मनी लेफ्ट फॉर एनीथिंग। अ कंट्री इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन। कंट्री ओवरस्पेंड्स, कंट्री गोज बैंकरप्ट, सेम एज पर्सन ओवरस्पेंड्स गोज बैंकरप्ट। दिस इज नॉट ऑप्शनल। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। बात तो इलॉन मस्क सही कर रहे हैं, लेकिन मजेदार केस ये है कि अब इलॉन मस्क जो है नाराज है, खासे नाराज है। उनकी कंपनी का जो है वाट लगा दी गई है, उनकी कंपनी को जबरदस्त नुकसान होगा और इलॉन मस्क के शेयर प्राइसेस आज बुरी तरह से गिरेंगे, जमीन पर होंगे, धड़ाम होंगे। और जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया, उस वीडियो में जिसमें दिख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस वीडियो को भी इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और बाकायदा एक सरप्राइजिंग वाला, मतलब आंख चढ़ाकर जो है वो किया। तो कुल मिलाकर जो है इलॉन मस्क जो है पूरी तरह से जो है युद्ध के मूड में आ गए और यहां तक कह दिया कि ट्रंप को हटाकर जेडी वांस को लाना चाहिए। स्लो न्यूज डे, वी वर इवन गोइंग टू टॉक अबाउट द वी ऑन। हंसी उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं इलॉन मस्क। मजेदार केस है सर, शानदार कहानी चल रही है और रिलेशनशिप जो है अब दोनों की खटास में बदल चुकी है और जब इतनी खटास में बदलती तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेसिडेंट वर्सेस इलॉन, हु विंस? माय मनी इज ऑन इलॉन। कोई सज्जन है वो लिखते हैं, ट्रम्प शुड बी इम्पीच्ड एंड जेडी वांस शुड रिप्लेस हिम। इलॉन कहते हैं यस, तो ट्रम्प को हटा देना चाहिए, इम्पीच करके साइड में कर देना चाहिए और जेडी वांस को जो है नया राष्ट्रपति बना देना चाहिए। चलिए, ये अपने आप में अब तक का सबसे जबरदस्त झगड़ा है जो ओपन में आया। सबसे कमाल की बात यह है कि दोनों साथ चले, पैसा भी लगाया, सरकार भी बनाई और अब सरकार इनके अगेंस्ट में हो गई। अब एक चीज़ को समझिएगा, सरकार यदि आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप संभल नहीं पाओगे। अब क्या करना चाहिए हमें इसमें क्या करना है? पॉपकॉर्न लेकर आराम से देखें, मजे देखें। इलॉन मस्क विवेक रामास्वामी रिमूवल, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही पकड़े हो आप राजेश जी, 100% की बात है। जैसा किया वैसा भरा। क्या करना चाहिए? सारे जो लोग हैं वो लिख रहे हैं, पॉपकॉर्न लो और बैठ जाओ अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके, मजे लो। बेवकूफ़ लोग होते हैं वो मजे लेते हैं, जो कबाड़ी होते हैं ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, वो दूसरे के उसमें मजे लेते हैं। जो समझदार होते हैं वो दूसरे की लड़ाई में अपना फायदा देख लेते हैं। मौका बहुत सुनहरा है। मोदी जी ट्रंप को, इलॉन मस्क को फोन घुमाओ, कहना स्पेसक्राफ्ट अपनी एक्स यहाँ लिया, बता कितनी जगह चाहिए तुझे, जगह हम दे रहे हैं, तेरे को पूरा प्रोटेक्शन भी देंगे और अपनी टेस्ला भी लिया लगे हाथों, आजा दोनों लिया और यहाँ से बना के बेचेंगे, सस्ते में बनेगी, सस्ते में बेचेंगे और बल्ले बल्ले भारत में भी तेरे को कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। सुनहरा मौका है, तुरंत फोन लगा के बुलाना चाहिए, आ जाओ फटाफट। वो तुम वहाँ डीकमीशन कर रहे हो, यहाँ रिकमीशन कर लेना, वहाँ से खोल रहे हो, यहाँ लगा लेना, तुम्हारा जाइंट स्पेसक्राफ्ट यहाँ लगाना ना, काहे के लिए परेशान हो रहे हो? भारत के पास आज इतना पैसा है कि हम इलॉन जैसे को बुला सकते हैं और भारत के लिए, यदि इलॉन भारत में आ जाता तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा मत तो ये है कि ना इधर देखो ना उधर देखो और तुरंत जो है तुरंत अपना कांटा फेंको। कोई एक बात याद दिलाता हूँ आपको, इलॉन का देख के बड़ा अजीब लग रहा है, बाबा रामदेव याद है और मोदी याद है, उनको भी सब कुछ बहुत सारा चाहिए था, लड़ाई झगड़ा हो गया था फिर, है ना? अब जाके वापस पटरी पे आए, ये भी पटरी पे आ जाएंगे। पटरी पे आने से पहले आप उसको खींच लो, पटरी पे आ गए फिर कौन सुन रहा है आपकी, तो उसको तुरंत यहाँ ले लेना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए, बताओ तुमको क्या फैसिलिटी चाहिए, अपना कैलकुलेशन बताओ, हमको कितना फायदा हो रहा है और जैसे आराम डील को फाइनल करो। तो ये बहुत सुनहरा मौका है भारत के लिए और मुझे लगता है कि इसको हमको अमल में लाना चाहिए। अगर एक कंपनी आएगी तो आप ये मानकर चलिएगा कि आने वाले 10 सालों में आपके पास स्पेस एक्सपीडिशन की 10 नई कंपनियां और होंगी और उनमें से 8 तो आपकी खुद की होम ग्रोन होंगी। तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से, इलॉन मस्क को जो है ट्राई करना चाहिए। खैर, लड़ाई जो है मज़ेदार है, लड़ाई जो है वो दो लोगों के बीच है, दो दिग्गजों के बीच है। इलॉन भी कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, बहुत पैसे वाला आदमी है, उससे लड़ना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। ठीक वैसे जैसे अंबानी से लड़ना भारतीय सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है या अडानी से लड़ना पॉसिबल नहीं है। अंबानी के खिलाफ में अडानी को खड़ा कर दिया सरकार ने, लेकिन लड़ नहीं पाया अंबानी से। इसी प्रकार से इलॉन के खिलाफ में किसी और को खड़ा तो कर लेंगे, इलॉन से लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? सो आई गेस कि बहुत मज़ेदार होने वाली ये चीज़। और ज़रा देखिए फेडरल डेट कहाँ पहुँच गया। 2022 में 719 बिलियन था, 2023 में 883 बिलियन हुआ, 2024 में 1.13 ट्रिलियन। इंटरेस्ट कॉस्ट है सर, ये डेट नहीं है। कांग्रेस स्पेंडिंग अमेरिका इनटू बैंक्रप्सी, इलॉन कहते हैं।
हाँ? तो बहुत सारी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि भाई जो डेफिसिट बजट है इसको खत्म करो, ये लोन जो आप ले रहे हो उसको खत्म करो, कोई कह रहा है कुछ। सब अपने अपने हित साधने में लगे और सबको बहुत जल्दी है कि सब कुछ मुझे मिल जाए। एक्चुअली राइट विंगर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कभी सत्ता में रहे नहीं, सत्ता में एकदम से सब कुछ नहीं मिलता, धीरे धीरे ग्रिप बनाई जाती है, कानून ऐसे बनाए जाते हैं, वो इनको नहीं आता, इनको हथेली पे सरसों चाहिए। इसलिए ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। और अभी और भी बहुत मज़ा आएगा देखने को, क्योंकि जो डेट है इनका ये बहुत ऊपर जा रहा है। और डेट अगर ऊपर जाएगा तो आप समझिए रिसेशन में अमेरिका जाएगा। रिसेशन में अगर अमेरिका जाएगा तो टेस्ला कारें तो बिकने से नहीं, उनको सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता अगर आप करोगे तो किस प्रकार से करोगे, उसके लिए आपको सस्ती चीज़ें बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। सो 2021 में एक पुराना जो है, We don't need the $7,500 tax credit. I would say. अब जो इलोन ने कहा था कि हमें 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 ये टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए 2021 में। इलोन कह रहे हैं ये उस समय मैंने कहा था हमें कोई टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए, हम तो बिना टैक्स क्रेडिट के भी अच्छे हैं, यानी जो सब्सिडी की बात होती है। अब देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल वोटाइल से मुझे लगता है कि भारत को एक बार इनको टैप करना चाहिए। इलोन इज अपॉर्चुनिटी नो सेंट। मालूम है बिजनेसमैन कब सेंट होने लगे, आपके पास एक और बिजनेसमैन आ जाएगा, आपको कुछ उससे सीखने को मिलेगा, अपने को उससे फ़ायदा लेना आना चाहिए सर। तो जिस ड्रैगन की बात हो रही है सर, वो ये रहा, वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ड्रैगन अराइव्स एट हैंगर एट पैड 39A इन फ्लोरिडा अहेड ऑफ इट्स फर्स्ट फ्लाइट। फैल्कन 9 इज टारगेटेड टू लॉन्च ड्रैगन। ठीक है, तो अब ये जो ड्रैगन है बोल रहे हैं हम वापस ले लेंगे, तो हमारा सिर्फ इतना से कहना आप वापस ले रहे हो, उसको डीकमीशन कर रहे हो, तो हमारे ले आओ, कहाँ रखोगे इधर उधर। हैंगर सब यहाँ बना देंगे रातों रात, आप टेंशन मत लो इसका, वो हमें उसकी बहुत एक्सपीरियंस है हमारे को। तो मेरे हिसाब से तो अपना काम बनता, फाड़ में जाए जनता, बिल्कुल आयुष एकदम सही। ठीक है ना, हमें अपने काम से मतलब रखना, हमें मतलब नहीं है दुनिया से। इलॉन मस्क ने शायद आज तक इतने पोस्ट नहीं डाली होंगी जितनी उन्होंने अभी पिछले एक दिन में डाली है, या पिछले 12 घंटे में डाली है। ज़बरदस्त, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। एंड ही इज़ अप इन आर्म्स विद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक चुने हुए राष्ट्रपति हैं अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के, लेकिन क्या अब इनकी लड़ाई ही में तब्दील रहेगी या कुछ दोस्ती होगी। मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों ही बिजनेसमैन हैं, और दोनों अपना फ़ायदा और नुकसान जानते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला और दोनों फिर से वापसी करेंगे। हो सकता है साल एक आध साल चल जाए, लेकिन ये मौका अच्छा भारत के लिए, और भारत को अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए भी बहुत मदद मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि भारत को तो हर चीज़ में उतरना चाहिए। ये जो क्रिप्टो करेंसी इसमें भी उतरना चाहिए। अपने लीगल नहीं करेंगे, अपन दुनिया के लिए करेंगे, अपने उसका हेड ऑफिस बनाएंगे, सर्वर से यहाँ लगाओ, हमें अपने नहीं चलानी, तुम्हारे यहाँ चलाएंगे। क्रिप्टो में भी इलॉन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो। सो एज ए बिजनेसमैन इलॉन के पास बहुत बिजनेस है जिसका भारत फ़ायदा उठा सकता है। डिपेंड नहीं करता क्या इलॉन आएगा, क्योंकि इलॉन एक बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। वो डिमांड जब रखेगा ना आपके सामने, तो बहुत बड़ी डिमांड रखेगा, छोटी मोटी नहीं। बिकॉज उसको मालूम है अगर उसने वहाँ से छोड़कर भारत में आया तो अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं, कच्चा चबा जाएगा। तो अपने बिजनेस पे इतनी बड़ी रिस्क लेगा क्या? लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं तो यही कहूँगा कि बुराई नहीं है भाई, अपॉर्चुनिटी दिख रही तो उसको टैप करने में कोई बुराई थोड़ी है। आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बता दें कि www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, यहाँ आपको QR कोड मिलेगा, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, स्कैन करने के बाद अपना अमाउंट भर दीजिएगा। अमाउंट भरने के बाद में एड नोट ढूंढकर उसमें अपना नंबर और अपना नाम सीरीज याद रखा करो, नंबर और नाम सैनिक की तरह से काम किया करो मेरे यहाँ, यानी कि नाम पहले नंबर बाद में लगकर फिर भेज दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल है, इनको क्लिक करके ज्वाइन करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को बिल्कुल ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।